Today we discuss about measure of central tendency. Now what is central tendency? So central tendency is basically for any group of data is that value which is the most representative of that data set. Now the question is, what is the meaning of most representative? So let us take an example. Suppose we talk about the average weight of students, and let's say there are 20 students in the class, and let's say their weights are different from each other, but however there will be one such value which is representative of all their weights of the student in the class. That value is the central tendency, or simply we can say that around that value the individual weight of students will be clustered. So this is the central tendency. Now what is measure of central tendency? So any measure indicating the center of the data, center of a set of data, is called measure of central tendency, that is mean, median and mode. Mean can be defined as sum of all observation divided by their total numbers. This is a formula of mean. Okay, like for example, if you want to find the average weight of 7 students, then first we add this data. The sum of all of these observations are 448, and then divided it by the number of students, that is 7. So we get 64. What does it mean? It means that this 64 indicates the center of that data, or it is the representative weight of these 7 students. Okay, what is median? Median is the middle value of set of data arranged in ascending or descending order. The formula that in case of odd number to find the median is n plus 1 divided by 2 value. Okay, like for example, if we have the odd data, first we arrange it, okay, and then how many number of observations are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 number of observation. N is equals to 7. So 7 plus 1 is 8. 8 divided by 2, that is 4th value. So after arrange the data, the 4th value is our median. 1, 2, 3, 4, that is 69. 69 is our median. So if number of observation is even, then median can be defined as the average of two center values. Like for example, if in this data set I add some another values, that is 78. So what would be the median of this data set? Then the center average of two center value, that is 69 and 71. Average of 69 and 71, that is 70. So 70 is median. Okay, now what is mode? Mode can be defined as the most frequent value in a set of data is called mode. Okay, like for example, in this data set, what is the most frequently occur value? That is 71. 71 occurs 2 times. Okay, 71 is our mode. Now if we want to find statistically out of these 3 which one is best measure of central tendency, so students, the best measure of central tendency is mean, that is mean more than median more than mode. Why mean is best? It is because it takes into account all observation, that's why. What is stem and leaf plot? A stem and leaf plot is a table that is used to display a data. Okay, it is a table that is used to display a data. The stem is on the left display the first digit or digits, and the leaf is on the right and display the last digit. For example, if we want to make a stem and leaf plot for this data, so how can we make a stem and leaf for this data set? First we make a 2 column. One is for stem and other is for leaf. Okay. How can we put a digit in stem and in leaf column? So for this, look at this value 50.
This 0 is our leaf and this 5 is our stem. Okay, like for example, let us take another value, that is 100. So in this case only this last digit is our leaf and remaining these 2 digits drop the leaf. These 2 digits are our stem. Okay, now for our given data, the stem and leaf can be created by first we create the stem by listing the largest placed value digits into the left of this vertical line. Okay, look at this data. Here we have 23, so 3 should be written on this leaf column. Okay, in 30s we have no value, so leave it. Okay, in 40 we have 44, so write 4 over here. And next we have 50, and then we have 65 and 68, 69, and then we have 70. Okay, then 83, 84, 85, 87, 89, and 90, 100. Okay, this is the stem and leaf plot for this given set of data. Okay, now if you turn this stem and leaf plot on its sides, it's sort of like a histogram. Okay, and this stem and leaf shows the individual value in data set, and generally it is used for smaller data set. In this video we will discuss about the most important topic of statistics, that is mean. There are 3 methods of finding mean for group data, that is direct method, assumed mean method, and step deviation method. Now if we want to find the mean for this group data by direct method, then we have to create these 2 columns, xi and fi-xi. This xi column is very simple. It is just the average of these classes, or simply we can say that it is the midpoint of these classes. You just add these 2 values and divide it by 2. So sum of 5 and 0 is 5 and half of 5 is 2.5. Now to find the next value of xi column, we add our class length with this 2.5. What is class length? Class length is the difference between upper class limit and lower class limit, that is the difference between 5 and 0. So in this case the class limit is 5, so 2.5 plus 5 we get the next value of x, that is 7.5. Again 7.5 plus 5 we get 12.5. 12.5 plus 5, 17.5. 17.5 plus 5, 22.5. 22.5 plus 5, 27.5. 27.5 plus 5, 32.5. Okay, this fi-xi column is very simple. It is the product of fi and xi. You multiply this 12 with 2.5 and get the first value of fi-xi, that is 30. Now by multiplying 223 with 7.5, we get this value. So this is very simple. We obtain this column by multiplying these 2 columns. Okay, this is the sum of fi-xi column and this is the sum of fi column. Okay, this is the formula to obtain mean by using direct method, that is x bar is equals to summation fi-xi divided by summation fi. Now put these values in this formula and we get the answer, that is 14.56 is our mean.
Now if you want to find the mean for the same question by using the assumed mean method, you have to make a 3-column xi, di and fidi. This one can be found very easily. This is the same thing which we find in previous method. Only these two are different. Now how you can find the values of di? It is very simple. You can find it very easily. What you need to do, you can take anything assumed from this column. Let's suppose 12.5 is my assumed mean. This 12.5 is my assumed mean. Now exactly over here in front of this A, you will write 0 and here we subtract our class length from this 0. We get -5. Again we subtract class length from this -5. We get -10. And here we add our class length with this 0. We get +5. Again 5 plus 5 we get 10. 10 plus 5 15. And 15 plus 5 is 20. Now this is the product of fi and di. Multiply this 12 with -10, we get the first value of di, that is -120. Similarly, by multiplying 223 with -5, we get the second value of fidi, that is -1115. Okay. Similarly, by multiplying all these values, we get fidi column. Okay, this is our fidi column and this is the sum of fidi column. Now, what is the formula of assumed mean method? So, this is the formula of assumed mean method. That is x bar is equals to a plus summation fidi divided by summation fi. Now putting the values over here, divided it, so we get 2.07. 2.07 plus 12.5, we get the value of mean, that is 14.57. Now let us understand the last method, that is the step deviation method. And what you can observe from this method, you can observe that the calculation are very easier to, in this method we have to create 3 columns, xi, ui and fiui. This xi is same. Ui column can be obtained by using this formula, that is xi minus a divided by c. Okay, a is our assumed value, assumed mean, and this c is the class length. Okay, the difference between upper limit and lower limit. So here I assumed that this 17.5 is my assumed mean. So in front of this a, I write 0, and in this method we write here, we subtract 1 from this 0, again subtract 1 from this -1, we get -2, again -2 minus 1, -3, and here we add 1 with this 0, we get 1, again 1 plus 1 is 2, and 2 plus 1 is 3. Now this fiui is the product of this fi column and ui column. Multiply this 12 with -3, we get -36. Multiply this 223 with -2, we get -446. Similarly, by multiplying remaining values of fiui, we get the fiui column.
Okay, this is the sum of FIUI column, that is minus 670. Now the formula that is used for step deviation method is x bar is equals to A plus summation FIUI divided by summation FI multiply C. Okay, A is 17.5 and summation FIUI is minus 670 and summation FI is 1143. Multiply with C, where C is 5. So first we divide these two and we get 0.586. Multiply this 0.586 with 5, we get 2.93. So subtract 17.5, 2.93, subtract from 17.5, we get 14.56, which is our mean value. Okay. Now in first you have to do the big multiplication in direct method, whereas in assumed mean method the calculation are big smaller and in step deviation it will be smallest, and this method is the easiest method to finding the mean. In this video we will discuss about median for group data. मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा के लिए हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे फॉर ग्रुप डेटा। इस क्वेश्चन के लिए मीडियन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। सबसे पहले काम मुझे क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसीज का सम करके उस सम का मुझे हाफ चाहिए। इसका जब मैंने सम किया तो 29 मेरे पास आया, ठीक है। इस 29 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो 14.5 आया था। आगे आप लोग को क्या करना है कि इस CF का कॉलम आपको फाइंड करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉलम आपको फाइंड करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपके पास कैसे आएगा, बहुत आसान है। फर्स्ट वैल्यू इसकी जो फ्रीक्वेंसी कॉलम की फर्स्ट वैल्यू होगी एज इट इज वही वैल्यू आपने फ्रीक्वेंसी कॉलम में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में भी लिख लेनी है, ठीक है। एक दफा फिर बता देती हूँ कि फ्रीक्वेंसी कॉलम की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख लेनी है। अब सेकेंड वैल्यू इसकी कैसी आएगी, इस फ्रीक्वेंसी कॉलम की फर्स्ट वैल्यू ऐड कर दें फ्रीक्वेंसी कॉलम की सेकेंड वैल्यू के साथ, दैट इज 3 प्लस 6 9। थर्ड वैल्यू क्या कैसे आएगी, ये 9 प्लस कर दे इस 3 के साथ, 12 प्लस 2 14 प्लस 8 22 प्लस ये वाला 3 तो आपके पास क्या आएगा 25 प्लस 4 29। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये CF की लास्ट वैल्यू आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होगी, मस्ट, ठीक है ना। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम की लास्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी कॉलम के सम के बराबर होगी। ओके, नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, इनमें से मीडियन क्लास देखना है। मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे, ये जब हमने फ्रीक्वेंसी कॉलम के सम का हाफ किया तो हमारे पास क्या आया 14.5 आया, ठीक है। अब ये 14.5 मैंने इस CF के कॉलम में देखना है। 3 के साथ 14.5 को कंपेयर करें तो 3 हम इस 14.5 से लेस है। हम आगे चले जाते हैं, 9 को कंपेयर किया तो 9 भी लेस है, 12 भी लेस है, 14 भी लेस है 14.5 से, लेकिन 22 जो है वो 14.5 से ग्रेटर है। सो जो पहली वैल्यू ऊपर से आप आएंगे, ठीक है, इस साइड से आप नीचे की तरफ आएंगे और कंपेयर करेंगे, जो पहली वैल्यू हमारे पास हमारी इस फ्रीक्वेंसी के सम के हाफ से ग्रेटर होगी, वही हमारा मीडियन क्लास होगा। तो ये यहाँ पे हमारा मीडियन क्लास क्या है, दिस इज अवर मीडियन क्लास, ठीक है। ये हमारा मीडियन क्लास है। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या है मीडियन का ग्रुप डेटा के लिए, वो ये है, ठीक है, कि M इज इक्वल्स टू L प्लस
n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई C। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में ये L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। हमारा मीडियन क्लास कौन सा था? ये हमारा मीडियन क्लास है। इस क्लास की लोअर लिमिट हमारे पास ये देखिए 40 है। सो L इज इक्वल टू 40। N क्या है? N इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 29। ओके, CF क्या है? CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। देखिए इस चीज को गौर से पढ़े। CF क्या है? CF इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। हमारा मीडियन क्लास कौन सा है? मीडियन क्लास हमारा ये है, ठीक है। तो CF हमारे पास ये 22 जो ये CF नहीं है, इससे एक पहली वाली वैल्यू जो होगी प्रीसीडिंग वैल्यू वो क्या है? 14। सो 14 हमारा CF है, ठीक है। 14 CF इज इक्वल्स टू 14। F क्या है? F फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास को देखें, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 8। सो F इज इक्वल्स टू 8। अब C क्या है? C इज दी क्लास लेंथ। क्लास लेंथ हम प्रीवियस वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं कि क्लास लेंथ कैसे हम फाइंड करते हैं। तो क्लास लेंथ जो होता है ना, वो अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है। यानी आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करोगे तो आपके पास क्लास लेंथ आएगा। 10 माइनस 0 करो 10 आता है, 20 माइनस 10 करो तो 10 आता है। तो इन सब में जो क्लास लेंथ है वो हमारे पास 10 है। सो C इज इक्वल्स टू 10। ना अब इन तमाम वैल्यूज को हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे L की जगह उसकी वैल्यू 40 प्लस 14.5 जो कि n/2 की वैल्यू है माइनस CF डिवाइडेड बाय CF क्या है? 14 है डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 10। अच्छा, 14.5 माइनस 14 किया तो 0.5 हमारे पास आया। उस 0.5 को हमने 8 पे डिवाइड किया तो 0.0625 आया, ठीक है ना। 0.0625 के साथ हमने 10 को मल्टीप्लाई किया तो 0.625 आया। 40 के साथ 0.625 को प्लस किया तो हमें मीडियन की वैल्यू मिल गई जो कि 40.625 है। क्लास बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्लास बाउंड्री होता क्या है और हम किसी फ्रीक्वेंसी टेबल में क्लास बाउंड्रीज फाइंड कैसे करेंगे। क्लास बाउंड्री इज द मिड पॉइंट ऑफ अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ सब्सिक्वेंट क्लास। Each class thus has an upper and a lower class boundary. Now how to find class boundaries in a frequency table? तो देखिए बहुत आसान है। आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है? क्लास बाउंड्रीज फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा? फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट को सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसका आपने हाफ करना है, यानी उसको 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। और फिर वहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, वो इन तमाम लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और उसको इन तमाम अपर क्लास लिमिट में ऐड कर देना है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास अपर क्लास लिमिट फर्स्ट क्लास की क्या है? 24 है, ठीक है। इस 24 को आपने सेकेंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट यानी 25 से माइनस कर देना है। तो जब हम इनको माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 25 माइनस 24। और फिर हमने क्या कहा कि इसका हाफ भी लेना है, यानी उसको 2 पे डिवाइड करना है। तो 25 माइनस 24 करेंगे 1 आता है, और उसको फिर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये इसका रिजल्ट क्या आता है? 0.5। तो अब इस 0.5 को हमने इन तमाम लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और इन अपर क्लास लिमिट्स में इस 0.5 को ऐड कर देना है, तो आपकी क्लास बाउंड्री जो है वो इजीली बन जाएगी। अब इस फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट हमारे पास क्या है? 20। इस 20 से मैंने 0.5 माइनस करना है, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास 19.5। और 24 में, इस 24 में हमने क्या करना है? 0.5 को प्लस कर देना है, तो ये 24.5 आएगा। सेकेंड क्लास की फर्स्ट लोअर क्लास लिमिट 25 है। इस 25 से हमने 0.5 माइनस किया तो 24.5, और अपर क्लास लिमिट इसकी 29 है। 29 में इस 0.5 को मैं प्लस करूंगी तो ये मेरे पास 29.5 आ जाएगा।
अगेन थर्ड क्लास की लोअर क्लास लिमिट 30 है, 30 में से 0.5 में माइनस करूंगी तो 29.5 आएगा। और अपर क्लास लिमिट थर्ड क्लास की 34 है, तो 34 में जब मैं 0.5 प्लस करूंगी तो ये 34.5 आ जाएगा। अच्छा, फोर्थ क्लास की लोअर क्लास लिमिट क्या है, 35 है, 35 से जब मैं 0.5 माइनस करूंगी तो 34.5 आएगा। और अपर क्लास लिमिट 39 है, 39 में 0.5 हम प्लस करेंगे तो 39.5 आ जाएगा। अब लास्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट क्या है, 40, 40 में से जब 0.5 माइनस होगा तो ये 39.5 आएगा। और अपर क्लास लिमिट इस क्लास की क्या है, 44 है, सो 44 में जब 0.5 प्लस होगा तो 44.5 आ जाएगा। ये आपकी क्लास बाउंड्रीज बन गई। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से हमने, बहुत आसान तरीके से हमने इसको बनाया। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, उस डिफरेंस को 2 पे डिवाइड करना है, वहां से जो वैल्यू आएगी उसको इन तमाम लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है और इन अपर क्लास लिमिट में उस वैल्यू को प्लस कर देना है। ठीक है, आपकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। मोड फॉर अनग्रुप डेटा हम कर चुके हैं। मोड होता क्या है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा सेट। ठीक है ना, डेटा सेट में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है वो हमारा मोड होता है, सिंपल अनग्रुप डेटा के लिए। अब ग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे फाइंड करेंगे तो आज हम इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, हम क्लास इंटरवल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, फ्रीक्वेंसीज भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। आपने क्या बनाना है, क्लास मार्क और क्लास बाउंड्रीज बनानी है। ठीक है, यहाँ पे क्लास मार्क्स में बना चुकी हूँ। क्लास मार्क्स कैसे बनते हैं, बहुत इजी है। इन दो वैल्यूज को लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, वहां से आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी क्लास मार्क की। सेकंड वैल्यू के लिए आपने सेकंड क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास 27 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये क्लास मार्क्स का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे, फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट को सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको आपने फिर 2 पे डिवाइड करना है, वहां से जो वैल्यू आएगी वो इन तमाम लोअर क्लास बाउंड्रीज में वो वैल्यू इन तमाम वैल्यूज से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इन अपर क्लास लिमिट में उस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास बाउंड्रीज जो है वो बन जाएंगी। देखिए, फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट मेरे पास क्या है, 20, सो 20। अच्छा, पहले तो मैं इन दोनों का डिफरेंस करती हूँ, तो 25 माइनस 24 1 को मैं 2 पे डिवाइड करूंगी तो 0.5, क्या वैल्यू आई मेरे पास, 0.5। अब वो 0.5 मैं इन तमाम लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करूंगी और इन अपर लिमिट्स में मैंने उसको प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट मेरे पास क्या है, 0 है। ठीक है, सॉरी 20 है। फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट 20 है। मेरे पास वैल्यू क्या आई है जो मैंने इसे सब्ट्रैक्ट करनी है, 0.5। तो 0.5 जब मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगी इसमें से तो मेरे पास आएगा 19.5 और इस 24 में जब प्लस 0.5 मैं करूंगी तो 24.5 आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये क्लास बाउंड्री बन गई फर्स्ट क्लास के लिए। सेकंड क्लास में भी इसी तरीके से करना है, 25 में से 0.5 आपने माइनस कर देना है और 29 में 0.5 आपने प्लस कर देना है। ठीक है, फिर थर्ड के लिए भी इसी तरीके से 30 में से 0.5 जब आप माइनस करोगे तो 29.5 आएगा और 34 में जब आप 0.5 प्लस करोगे तो 34.5 आएगा। ठीक है, तो आप 0.5 को इन तमाम लोअर क्लास इंटरवल से जो है तो आप माइनस करते जाएं और अपर क्लास लिमिट्स में उन 0.5 को प्लस करते जाएं तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज जो है वो आ जाएंगी। अच्छा, अब मोड फॉर ग्रुप डेटा का फॉर्मूला देखें। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब ये L क्या है, L इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो L की वैल्यू होगी। ठीक है,
Fm क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है ना, मॉडल क्लास से जो एक पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग क्लास। अच्छा, मॉडल क्लास से एक नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी। H इंटरवल है बिटवीन क्लास लिमिट्स। अब मॉडल क्लास आपको कैसे आप सेलेक्ट करोगे? तो आप देखें टेबल की तरफ आए तो यहाँ पे देखें जो सबसे जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना वही आपका मॉडल क्लास होगा। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? 102। 102 क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सो ये हमारा मॉडल क्लास हुआ, ठीक है। अब L हमने कैसे डिफाइन किया था कि जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, तो उसकी लोअर क्लास बाउंड्री 34.5 है, सो L की वैल्यू 34.5 हो गई। अब फिर हमने कहा कि Fm जो है वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, यानी 102, ये हमारा मॉडल क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 102। ओके, अब F1 क्या है? इस मॉडल क्लास से एक प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 43 है। ओके, F2 जो है वो इस मॉडल क्लास से एक नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 69। सो और H क्या है? H इन क्लास लिमिट्स के दरमियान डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब इन वैल्यूज को हम फार्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन वैल्यूज को हमने पुट किया। इस 102 को आप 43 से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट किया हमने, यहाँ पे भी 102 माइनस 43 है और यहाँ पे 102 माइनस 69 किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा, फिर इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दे और इन दोनों को आपस में प्लस कर दे, फिर इनको डिवाइड करके 34.5 के साथ प्लस कर दे, 34.5 के साथ प्लस कर दे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये 34.5 है, आपके पास मोड आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन क्या होता है? A value which divide the data into two equal parts is called median, यानी वो वैल्यू जो हमारे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे वो क्या कहलाती है? वो मीडियन कहलाती है। लेकिन बात सिचुएशन में हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है वो बहुत लार्ज हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा डेटा सेट है जिसको हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है वो हो सकता है हम उसको एक्सटेंड कर दे किसी भी नंबर तक डिवीजन में, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्वांटाइल्स की तरफ आते हैं। क्वांटाइल्स में हमारे पास क्वार्टाइल है, डिसाइल्स है और परसेंटाइल्स है। तो क्वार्टाइल्स क्या होता है? देखिए, the three values which divide the data into four equal parts are called quartiles, ठीक है। Q1, Q2 और Q3 वो तीन वैल्यूज है जो हमारे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। Q1 क्या है? फर्स्ट क्वार्टाइल है, Q2 जो है वो सेकंड क्वार्टाइल और Q3 जो है वो थर्ड क्वार्टाइल है, ठीक है। अब Q2 जो है ये मीडियन के इक्वल भी है, कैसे ये हम आगे करेंगे, ठीक है। डिसाइल्स क्या होता है? The 9 values which divide a set of data into 10 equal parts are called deciles, which are denoted by D1, D2, D3, D4 up to D9. और percentiles क्या है? The 99 values which divide a set of data into 100 equal parts are called percentiles, which are denoted by P1, P2, P3, P4 up to P99. अच्छा, अब फार्मूला क्या है इन सब को फाइंड करने का? देखें, बिल्कुल मीडियन वाला फार्मूला आपको मीडियन का फार्मूला याद हो गया है ना, तो आप बाकी सारे फार्मूले बिल्कुल मीडियन के फार्मूले को देख के आप कर सकते हो। बहुत इजी है। चेंजेस कहाँ पे आ रही है? सिर्फ n/2 की जगह चेंजेस आ रही है, बाकी सारा फार्मूला जो है वो सेम रहेगा। अच्छा, मीडियन का फार्मूला आप देखें, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस H डिवाइडेड बाय F n/2 माइनस CF। अब n/2 आपने क्यों किया है? क्योंकि n/2 हम मीडियन में हम क्या कहते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपने n/2 करना है, ठीक है। अब Q1 का फार्मूला देखें, L प्लस H बाय F n/4 माइनस CF। n/4
क्वार्टाइल की आप डिफिनीशन पढ़ लें, हम ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, सो ये n/4 होगा। अब अगर आप Q2 की बात करें, सेकेंड क्वार्टाइल की बात करें, तो उसका फार्मूला आप देखिए क्या बनेगा, L + h/f 2 × n डिवाइडेड बाय 4 - CF। अब वो जो 2 ऊपर है वो नीचे 4 के साथ कैंसिल होके n/2 बन जाएगा, जो कि सेम मीडियन का फार्मूला आपके पास आएगा। तो हम क्या कहते हैं कि Q2 जो है वो मीडियन के इक्वल है, ठीक है। Q3 देखें, Q3 कैसे आएगा आपके पास, L + h/f, क्योंकि ये थर्ड क्वार्टाइल है इसलिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ 3 आपने मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करना है -CF, ठीक है ना। ये आपके पास क्वार्टाइल्स और मीडियन हो गए। डिसाइल कैसे होगा, अब अगर हम यहाँ पे D1 की बात करें तो L + h/f n/10 - CF आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब D9 है इस क्वेश्चन में, जो हम आगे फाइंड कर रहे हैं उसमें D9 हमने फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे 9 इस और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके 10 पे उसको डिवाइड कर रहे हैं। परसेंटाइल P9 क्या होगा, L + h/f 9n डिवाइडेड बाय 100 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करना है 100 पे। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होंगी। आपने क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद बनानी होगी, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज आप कैसे बनाओगे, हम पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। आपने 0.5 इन तमाम लोअर क्लास लिमिट से माइनस करनी है और 0.5 को इन तमाम अपर क्लास लिमिट में प्लस करना है। हम 0.5 ही क्यों प्लस और माइनस कर रहे हैं ये हम बता चुके हैं। आप हमारी डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे जाके आप देख सकते हो कि हम 0.5 ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आपने लिखनी है, फिर उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सेकंड फ्रीक्वेंसी के साथ प्लस कर देना है, ठीक है। सेकंड फ्रीक्वेंसी के साथ आपने उसको प्लस कर देना है, फिर सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को थर्ड फ्रीक्वेंसी के साथ प्लस कर देना है। आप इसी तरीके से करते जाओ तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आपने देखिए, आगे हमने मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 पे डिवाइड करोगे, ठीक है। आपके पास क्या वैल्यू आती है, ये देखिए हमारे पास आई है 1854.5, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि ये कहाँ पे लाई कर रही है। तो ये 1854.5 जो है ये इसमें भी लाई नहीं कर रही, इसमें भी नहीं कर रही, इसमें भी नहीं कर रही, ये भी बहुत छोटा है 1854.5 से। ये जो 2180 है हमारी वैल्यू जो है ये देखें इसमें लाई कर रही है, ठीक है। तो हम इसको ये जो है ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मीडियन क्लास है, ठीक है। इस मीडियन क्लास में हमारी जो n/2 वैल्यू है वो लाई कर रही है। सो अब हमें हमारे फार्मूले में जो जो चीजें रिक्वायर्ड है L, H, F और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो सब हमें इस मीडियन क्लास से मिल सकता है। देखें L क्या होता है, L लोअर क्लास बाउंड्री होती है, ठीक है। मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है वो L की वैल्यू होती है। तो ये देखें इस मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 39.5, तो L की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 39.5। अच्छा, अब H क्या होता है, H इंटरवल होता है, ठीक है। 39.5 माइनस 34.5 आप करोगे तो आपके पास इंटरवल क्या आएगा 5 आएगा। तो ये H क्या होता है, ये इंटरवल होता है, डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान। अच्छा, F क्या होता है, F जो होता है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी अब देखें ये 525 है। सो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 525 हो गई। n/2 तो आपके पास यहाँ से यहाँ आ चुका है, ठीक है। माइनस CF जो हम करते हैं वो CF ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने नहीं लेनी, ठीक है। इससे एक प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, सही है ना। 1655 हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीडियन का रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब Q1 को देखें। Q1 में हम क्या करते हैं कि n/4 क्या ऑब्जर्वेशन को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो n/4 हमने करना है। जब मैंने n/4
n कितना है 3709 डिवाइडेड बाय 4 मैंने किया तो मेरे पास आया 927.25। अब ये 927.25 मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि ये किस ग्रुप में लाई कर रहा है। तो देखिए ये मेरे पास लाई कर रहा है इस ग्रुप में, ठीक है, ये इस ग्रुप में लाई कर रहा है। तो ये अब मेरा क्या हुआ, इससे मुझे अपनी तमाम बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डेटा में, फार्मूले में हमें जो जो चीजें चाहिए होती है वो हमें इस ग्रुप से मिल सकती है। एल क्या होगा, ये देखिए इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री जो कि 29.5 है, एच वही क्लास इंटरवल है जो कि 5 है, ठीक है। अब एफ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है ना, 508, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे एक प्रीवियस क्लास की जो कि 627 है, इससे ये वो हो जाएगी। बस आपने ये सारी वैल्यूज फार्मूले में पुट कर देनी है और उसको सॉल्व करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और Q3 देखें, Q3 कैसे करेंगे, 3n डिवाइडेड बाय 4 करना है, उसको आपने डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई, इसको हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक किया तो ये हमारी इस ग्रुप में लाई कर रही है। वो सारी इंफॉर्मेशन हमने इसमें पुट की, हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। फिर D9 हमने फाइंड किया तो D9 से ये रिजल्ट आता है जो कि हमारे ग्रुप 54.5 से 59.5 वाले ग्रुप में लाई कर रही है। सो वहां से हमारे पास L, F और CF ये सारा आ जाएगा। उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास D9 की वैल्यू आ गई। और P9 जो है वो आप इन कैलकुलेशन को इस तरीके से देख के। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज और टाइप्स ऑफ एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज क्या होता है, एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल डेटा, ठीक है, जो वो सिंगल वैल्यू जो हमारे होल डेटा को रिप्रेजेंट करे वो एवरेज कहलाती है। टाइप्स ऑफ एवरेज क्या है, अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीन जो है ना ये हम डिफाइन करेंगे इनके फार्मूले से ही, ठीक है ना, इनके फार्मूले से ही हम इनको डिफाइन करेंगे। मीडियन और मोड क्या है, मीडियन वो वैल्यू होती है जो हमारे डेटा की मिडिल वैल्यू होती है। मोड जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है डेटा सेट में वो मोड होती है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या है, देखें जब अरिथमेटिक मीन की बात आती है ना तो उसमें तीन चीजें आती हैं, फॉर अनग्रुप डेटा, फॉर ग्रुप डेटा और वेटेड मीन, ठीक है। हम अरिथमेटिक मीन को डिफाइन कैसे करते हैं, देखें, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर्स। तो फॉर अनग्रुप डेटा के लिए x बार इज इक्वल्स टू समेशन x डिवाइडेड बाय n अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, ठीक है। हमने डिफिनीशन में क्या पढ़ा कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो ये समेशन x क्या है, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। जितनी ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन होंगी उन तमाम ऑब्जर्वेशन को आपने ऐड कर देना है, उनको जमा कर देना है, और डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर्स, मतलब कि जितने ऑब्जर्वेशन वो होंगे उन नंबर पे आपने डिवाइड करना है, ठीक है। उन तमाम ऑब्जर्वेशन को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आपने डिवाइड कर देना है फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। और ग्रुप डेटा क्या होगा, आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे और फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी। उन फ्रीक्वेंसीज को पहले आपने ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उनके जो प्रोडक्ट होगा उनको ऐड कर देना है, उनका सम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक है। या फिर अगर आपके पास क्लास इंटरवल्स फॉर्म में गिवन है तो आपने मिड पॉइंट्स निकालने हैं उन क्लास इंटरवल्स से, और फिर उन मिड पॉइंट्स को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देना है और फ्रीक्वेंसी का अलग से सम करके उनको डिवाइड कर देना है, तो अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। वेटेड मीन क्या है, वेटेड मीन जब आपको क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन के साथ उनके वेट्स भी गिवन हो, वेट्स मीन इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन और उनकी इम्पोर्टेंस भी आपको गिवन हो तो आपने सिंपल क्या कर देना है, उन वेट्स को ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके उनको सम कर देना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वेट्स को अलग से सम करके उस पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास वेटेड मीन जो है वो आ जाएगा। सेकेंड टाइप क्या है एवरेज की के ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो देखें, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज x1, x2, x3 अप टू xn, ये क्या, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, n पॉजिटिव वैल्यूज इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट,
ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन को कैसे डिफाइन करेंगे, इन ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट का nth पॉजिटिव रूट जब हम लेंगे तो वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन हमारे पास लार्ज हो जाए तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है। लॉग जब हम लेंगे तो लॉग nth रूट ऑफ x1 x2 to xn क्या बनेगा, ये देखें, वो nth रूट जो 1/n पावर थी इस ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट की, वो इधर आ जाएगी। और अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये देखिए log x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 अप टू मल्टीप्लाई xn, ठीक है ना। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर इन पे log अप्लाई हो रहा है, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो समेशन log xi, यानी उन तमाम ऑब्जर्वेशन का पहले लॉग लोगे, ठीक है। लॉग लेने के बाद आपने उन तमाम वैल्यूज को ऐड कर देना है। और फिर अच्छा, एंटीलॉग कैसे आए, ये इस साइड की जो लॉग है, इस लॉग को खत्म करने के लिए हमने बोथ साइड एंटीलॉग अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ से लॉग एंटीलॉग के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास एंटीलॉग आ गया। ये फॉर्मूला है फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। अब फॉर ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा, फॉर ग्रुप डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, तो n की जगह समेशन fi आ जाएगा और समेशन log xi के साथ fi xi हो जाएगा, ठीक है ना। समेशन log fi xi, यानी उन ऑब्जर्वेशंस के साथ आपने पहले फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर उस पे log अप्लाई करके उनका सम ले लेना है और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के सम के, समेशन f पे डिवाइड करना है, फिर उनका एंटीलॉग ले लेना है, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अच्छा, हार्मोनिक मीन क्या होता है, देखें, हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर वैल्यूज। हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है उनका रेसिप्रोकल पहले ले लें, ठीक है। उन ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल, फिर उनका ऐड कर दे उन सब ऑब्जर्वेशन को जिनका आपने रेसिप्रोकल लिया है, फिर डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। तो ये देखें, समेशन 1 रेसिप्रोकल ऑफ समेशन 1 डिवाइडेड बाय xi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन तमाम ऑब्जर्वेशन का पहले हमने रेसिप्रोकल ले लेना है, फिर उनको ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय n करना है, ठीक है। अब चूंकि हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो हम इनको u लिखेंगे कि n डिवाइडेड बाय समेशन 1/xi। ये फॉर अनग्रुप डेटा है। फॉर ग्रुप डेटा क्या होगा, ग्रुप डेटा में आपके पास f आ जाएगा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो देखिए, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू समेशन fi डिवाइडेड बाय समेशन fi डिवाइडेड बाय xi हो जाएगा। मीडियन क्या है, देखिए, मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो मिडल वैल्यू होती है, पहले आप डेटा सेट को अरेंज करोगे, उसकी जो मिडल वैल्यू होगी वो मीडियन होगी, ठीक है। मोड क्या है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है डेटा सेट में वो मोड कहलाती है, यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है कंप्लीट डेटा सेट में वो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। 4 प्रॉपर्टीज है अरिथमेटिक मीन की और बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0। सम ऑफ डिविएशन, डिविएशन क्या होता है, मतलब आपने देखना होगा कि आपका जो मीन है वो ऑब्जर्वेशन से कितना दूर है, डिविएट करना है, ठीक है, यानी डिफरेंस आपने उनका देखना है। तो डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, x1 x2 xn जितने ऑब्जर्वेशन है उन ऑब्जर्वेशन का आपने डिविएशन देखना है फ्रॉम देयर मीन, यानी x बार 1 x बार जो उस ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा उससे आपने माइनस करके उनका जब ओवरऑल जब उन तमाम वैल्यूज को माइनस करके उनका सम आप लेंगे तो आपके पास वो 0 आना चाहिए। ये हमने क्या कहा, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट पढ़ी, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली देखें कैसे लिखेंगे, हम क्या कहते हैं, सम ऑफ डिविएशन, सम यानी समेशन, डिविएशन क्या होता है, जो माइनस, ठीक है, माइनस जो है ये डिविएशन में आ गया। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन आपके पास कितने, xi ऑब्जर्वेशन माइनस
यानी फ्रॉम देयर मीन, यानी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, तो एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये जब आप डिविएशन लोगे ऑब्जर्वेशन का फ्रॉम देयर मीन, तो आपके पास उनका सम जो है वो 0 आता है। तो इसको आप प्रूफ करोगे, बहुत ईजी है। देखिए बाहर वाला जो समीशन है, अंदर ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, तो आपके पास ये आ जाएगा समीशन एक्स आई माइनस, अब ये देखिए ये एक्स बार है, एक्स बार एवरेज है। ठीक है, एवरेज क्या है, ये कांस्टेंट है। तो जब भी आप कांस्टेंट पे समीशन अप्लाई करोगे तो आपके पास वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो ये समीशन यहाँ पे n में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे पास आएगा n एक्स बार। ठीक है, अब एक्स बार की मैंने एक फार्मूला पढ़ा था, समीशन x डिवाइडेड बाय n, तो वो समीशन f वो भी है वो ग्रुप डेटा के लिए। यहाँ पे हम क्या है, फॉर अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास क्या होता है, समीशन x डिवाइडेड बाय n। तो ये फार्मूला इस x बार की जगह हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए n जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी है और n डिवीजन में भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा समीशन एक्स आई। तो यहाँ पे पहले से समीशन एक्स आई था माइनस समीशन एक्स आई, ये आपस में कैंसिल होकर आपके पास 0, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास प्रूफ हो गई। ठीक है ना, सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 0। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज अ मिनिमम। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन की बात हो रही है, वहां पे आपके पास सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन था तो वो 0 था। यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, तो स्क्वायर जब आप करोगे उसी डिविएशन पे जब आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या, वो मिनिमम आएगा। आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, देखिए समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, सम ऑफ डिविएशन ऑफ स्क्वायर की बात किया ना, तो यहाँ पे आप स्क्वायर लेस और इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर, वेयर ए इज एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, ये कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, आपके पास ए कांस्टेंट है, तो आप इसको मैथमेटिकली हम प्रूफ कैसे करते हैं, ये वाली साइड हम ले लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड हमने लिया तो हमारे पास क्या आया, समीशन एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर, ये साइड हम ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने ये प्रूफ करना है ना कि ये मेरे पास मिनिमम है, तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक्स बार है, इस साइड पे मेरे पास कोई एक्स बार नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक्स बार लाने के लिए क्या करूंगी, एक्स बार को माइनस करूंगी इसके साथ और प्लस बी करूंगी। देखिए माइनस और प्लस मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ताकि मैं ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसको मैं प्रूफ कर सकूं। ठीक है ना, तो अब आप अगर इनको देखें तो ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, ये वापस यही स्टेटमेंट, ये चीज ही, ये वाला टर्म ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। तो देखें अब यहाँ पे इन दोनों को मैं एज अ फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में लिख लूंगी और इनको एज अ सेकेंड टर्म ले लूंगी। यहाँ पे मेरे पास क्या बना, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस ए होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये मेरे पास, अगर जो मैथ्स के स्टूडेंट वो इजीली इसको समझ सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आप इसको देखें, अगर आप इस ब्रैकेट वाले टर्म को एक्स आई माइनस एक्स बार को एज अ ए ले लें और एक्स बार माइनस ए को एज अ बी ले लें तो आपके पास ये क्या बनेगा, ये सेम ये फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर है ना इन पे, तो इसलिए ये मेरे पास ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले के जरिए मैंने इसको ओपन किया तो देखिए ये मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। सही है, अब मैं इस अभी यहाँ पे इस स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, समीशन को बाहर ही रहने दिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इस समीशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे समीशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ जब समीशन मल्टीप्लाई होगा तो अभी पहले भी मैंने बताया, यहाँ पे फिर बता रही हूँ, ये चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ जब समीशन मल्टीप्लाई होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा n में। ठीक है, वो n में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, इसको नेक्स्ट स्टेप में बाहर ले आए समीशन से और समीशन इस एक्स आई की वजह से इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार। हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 0। सो यहाँ पे हम 0 पुट कर लेंगे, ये पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा
आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा। हमने सेकंड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि ये जो वाली टर्म जो है मिनिमम होनी चाहिए। तो देखें ये इस समीशन xi माइनस ए होल स्क्वायर की इक्वल कब आएगा, जब इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म जो है वो ऐड हो जाएगी, तब कहीं जाके ये इसकी इक्वल आएगा। यानी ये समीशन xi माइनस ए होल स्क्वायर क्या है, ग्रेटर है समीशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर से, ठीक है ना। यानी सिंपली आप कह सकते हो कि समीशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर लेस है समीशन xi माइनस ए होल स्क्वायर से। आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई, प्रूफ हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखें। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि इफ k subgroups of data consisting of n1, n2, n3 up to nk summation ni equals to n observations have respective means x bar 1, x bar 2, x bar 3 up to x bar k, then x bar the mean for all data is given। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है और उनके रिस्पेक्टिव मीन्स गिवन है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं गिवन, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन नहीं गिवन, उनके रिस्पेक्टिव मीन्स गिवन है, तो तब आप फार्मूला कैसे लिखोगे एवरेज फाइंड करने के लिए। तो देखो x बार इज इक्वल्स टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 प्लस अप टू nk x बार k डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस अप टू nk। यानी x बार इज इक्वल टू समीशन ni x बार i डिवाइडेड बाय ni। तब आप फार्मूला इस फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी देखें। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आप मेरे लिए इस इक्वेशन के लिए आप मीन फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे, देखें yi इक्वल्स टू axi प्लस b, तो और इस इक्वेशन में a और b जो है वो कांस्टेंट है। तो आप सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इसको हम देखिए इसके लिए मीन कैसे फाइंड करेंगे। आप अप्लाई करें समीशन और फिर उसको उसी इक्वेशन पे डिवाइड करें, उस इक्वेशन को n पे डिवाइड, ठीक है ना। आप उस इक्वेशन पे हमने क्या किया, समीशन अप्लाई किया और n पे उसको हमने डिवाइड किया। तो देखें हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई, सही है। अब ये समीशन y डिवाइडेड बाय n, ये क्या है, फार्मूला है मीन का फॉर y। यानी अब समीशन x डिवाइडेड बाय n क्या होता है, x बार होता है, x की जगह y है तो ये y बार हो गया, इज इक्वल्स टू a। अच्छा, ये समीशन अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो गया a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, समीशन अप्लाई हो गया x पे, तो समीशन xi डिवाइडेड बाय n जो है ये हमारे पास x बार में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जब आप समीशन अप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक कांस्टेंट है, n में कन्वर्ट हो जाएगा। ये n मल्टीप्लीकेशन में भी और n डिवीजन में भी है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, कैंसिल हो गए तो आपके पास b आ गया, सही है। ये आपके पास क्या बन गया। अच्छा, x बार को इधर रहने दो और बाकी सबको इस साइड पे ले आओ, तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाती है। ये आपके पास फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मीन की, ठीक है। आज हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी है मीन की। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या है, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम अपना ओरिजिन और स्केल जो है वो चेंज करते हैं। हम ये प्रोसेस क्यों यूज करते हैं, जब हमारे पास डेटा सेट जो होता है वो बहुत लार्ज हो जाए तो उसकी कैलकुलेशन जो होती है वो भी बहुत लार्ज हो जाती है, ठीक है। तो उनको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। इस मेथड में चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है, देखें, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि जब आप अपने ऑब्जर्वेशन में क्या करते हो कि एक कांस्टेंट जो है वो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो अपने ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। और चेंज ऑफ स्केल मतलब कि आप अपने ऑब्जर्वेशन जो है उनमें स्केल को चेंज करते हो, यानी आप उनके साथ कोई वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो। तो अब अरिथमेटिक मीन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने फॉर ग्रुप डेटा और फॉर अनग्रुप डेटा हमने पढ़ा था। फॉर अनग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन सिंपली हमारे पास था कि x बार इज इक्वल्स टू समीशन x डिवाइडेड बाय n, और फॉर ग्रुप डेटा हमने पढ़ा था कि x बार इज इक्वल्स टू समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। यहाँ पे आप क्या करोगे, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के मेथड से जब आप देखोगे तो x बार इज इक्वल्स टू a प्लस h u बार, ठीक है ना। इस मेथड को आप कोडिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड भी कहते हो, ठीक है ना। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के प्रोसेस को आप कोडिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड भी कहते हो, जिसके थ्रू हम मीन फाइंड करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है। तो देखें यहाँ पे अब इस फॉर्मूले में ये a क्या है, तो ये एक एज्यूम्ड वैल्यू होती है जो आप एज्यूम करते हो, ठीक है, जो आप एज्यूम करते हो। और h क्या है, जो हमारे पास
क्लास इंटरवल होता है, और यू बार क्या है, ये मीन है यू की वैल्यूज का, ठीक है, यू की वैल्यूज का मीन, जैसे एक्स बार होता है बिल्कुल वैसे यहाँ पे यू बार है। तो यू बार यहाँ पे चूंकि देखिए हमें ग्रुप डेटा गिवन है, इसलिए हमारे पास यू बार का फॉर्मूला ग्रुप डेटा वाला आया है, ठीक है, समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अगर अनग्रुप डेटा होता तो यहाँ पे यू बार फिर इक्वल होता समेशन यू डिवाइडेड बाय एन के। अब यू क्या है ये आपको फाइंड करना होगा, कैसे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, कि x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, यानी जो वैल्यू आपने एज्यूम की है वो आप x की हर एक वैल्यू से वो आप माइनस करोगे और डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल करोगे, ठीक है। क्लास इंटरवल आपके पास कैसे आएगा, ये देखिए, क्लास लिमिट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्लास इंटरवल कहलाता है। तो 45 माइनस 40 आप करोगे तो आपके पास क्लास इंटरवल आएगा, या 50 माइनस 45 करोगे या 55 माइनस 50, सबसे आपके पास सेम इंटरवल ही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमें एक ग्रुप डेटा गिवन है। ग्रुप डेटा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये देखें यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में ही फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन हो तो वो डेटा आपके पास ग्रुप डेटा कहलाती है। तो ग्रुप डेटा में गिवन है वेट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, मैंने क्या फाइंड करना है, इनमें से मैंने क्लास मार्क या मिड पॉइंट्स आप कह लो, हमने ये पहले फाइंड करना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम हमने फिर u फाइंड करना है, u का कॉलम, ठीक है, और फिर उस u के कॉलम को फ्रीक्वेंसी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके fu का कॉलम निकालना है। अच्छा देखिए, ये x का कॉलम आपके पास कैसे आएगा, ये क्या होती है, ये मिड पॉइंट्स होती है या एवरेज कह लें कि इन दो वैल्यूज को अपने प्लस करके 2 पे डिवाइड करना होगा, ठीक है। 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 42 आता है। अब सेकेंड वैल्यू के लिए 45 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2 करें तो नेक्स्ट वैल्यू यानी 47 आपके पास आएगा, या फिर आप इस 42 में क्लास इंटरवल जो आपके पास आ रहा है उसको 42 में ऐड कर दें तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगेन बस सिर्फ आप क्लास इंटरवल जो है वो ऐड करते जाएं तो आपके पास जो है तो x की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। और अगर आप ये बहुत सिंपल मेथड है, सिर्फ क्लास इंटरवल जो है वो आपने ऐड कर देनी है। देखिए 62 प्लस 5 करें तो आपके पास 67 यानी नेक्स्ट वैल्यू x की आ जाएगी। और अगर आप क्लास इंटरवल ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपल इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दे तो भी यही वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है। ओके, u का कॉलम आपके पास कैसे आएगा, x की हर एक वैल्यू से आपने क्या करनी है, एक अज्यूम्ड वैल्यू माइनस करनी है और डिवाइडेड बाय उसको h पे करना है। अब अज्यूम्ड वैल्यू कहाँ से आएगी, वो इसी x के कॉलम से ही आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। इसी x के कॉलम से ही आप एक वैल्यू अब अज्यूम कर लें कि वो आपके पास a की वैल्यू है और फिर उसको बस आप u का कॉलम फाइंड करते जाएं। लेकिन अब वो वैल्यू कौन सी होनी चाहिए जो एक बेसिक कंसेप्ट कह लें कि अगर आपको आप ये देखें फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप देखें तो आपके पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को के सामने वाले x के कॉलम की जो वैल्यू होगी मैं उसको एज अ a ले रही हूँ, ठीक है। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली वैल्यू लेंगे तो आपके पास जो कैलकुलेशन होंगी वो बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली वैल्यू होती है वही लेते हैं। अब फर्स्ट वैल्यू कैसे आएगी, 42 मैंने a क्या लिया 52, सो 42 माइनस 52 क्लास इंटरवल मेरे पास कितना है 5, सो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे -2। अगेन 47 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 5 -1, 52 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 0 आएगा। और 57 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 5 1, 62 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 5 2, 67 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 5 तो 3 आता है, ठीक है। अब आपने FU का कॉलम कैसे आएगा, ये U का कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा F के कॉलम के साथ तो आपके पास FU आएगा, यानी -2 मल्टीप्लाई 7 किया तो -14 आया, -1 मल्टीप्लाई 16 किया तो -16 आया, 0 मल्टीप्लाई 45 किया 0 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 26 2 मल्टीप्लाई 4 8,
3 मल्टीप्लाई 18 किया तो 54। अच्छा, अब हमें चाहिए इस पूरे कॉलम का सम, तो हमने इनको ऐड किया, हमारे पास आया 58। देखिए हमें फार्मूले में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, यू बार। यू बार का फार्मूला क्या है, समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो समीशन एफ यू मेरे पास आ गया 58 और समीशन एफ जो है वो मैं कर चुकी हूँ पहले, ये क्या है 166। ये मैंने सिर्फ इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो देखिए मेरे पास इनको जब मैंने डिवाइड किया मेरे पास आया 0.349। अब इसको हम इस एक्स बार के फॉर्मूले में जो है तो पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार। एच क्या है, एच हमारे पास जो हमारा क्लास इंटरवल है वो 5। ठीक है, ए मैंने क्या सिलेक्ट किया था, ए मैंने ज्यूम किया था 52 को, तो 52 प्लस 5 और यू बार क्या है 0.349। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आता है 1.745, उसको प्लस करें 52 के साथ तो आपके पास मीन आ गया जो कि है 53.745। ठीक है, तो ये आज हमने क्या पढ़ा है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या है, देखिए एक प्रोसेस है जो हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी बड़ी बड़ी थी, 42, 47, 52। तो इन ऑब्जर्वेशन को हमने जब चेंज किया है तो देखिए कितनी स्मॉल वैल्यूज हमारे पास आई है, -2, -1, 1, 2, 3। ये हमारे पास अब इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन में हमें कितनी आसानी हुई, कितनी छोटी छोटी वैल्यूज थी, अब इनको कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत इजी था, हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली थी। इसके अलावा अब x की वैल्यू हमारे पास बहुत लार्ज हो सकती है। ठीक है, जब बहुत लार्ज हो जाए तो हमने क्या करना है, हम शॉर्टकट मेथड या कोडिंग मेथड की तरफ फिर हम आते हैं। हम इसको चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल भी कहते हैं। और इस मेथड में हमारे पास क्या होता है, हम अपना ओरिजिन और स्केल जो है वो चेंज करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन हमने पढ़ा था, तो उस टाइप्स ऑफ एवरेज की वीडियोस में आप देखें, वहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, कि हमारे पास जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है उन ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट का जब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ठीक है, और उसी वीडियो में हमने क्या ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू इंटी लॉग 1 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई log xi। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है फॉर ग्रुप डेटा के लिए। इस फॉर्मूले में आप देखें, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, xi। ये अगर आपको क्वेश्चन में क्या, आपको क्वेश्चन में हमें यहाँ पे वेट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, इस फॉर्मूले में मुझे xi नजर आ रहा है जो कि मुझे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इस xi को मैं क्या करूंगी, मैं फाइंड करूंगी। कैसे, ये हम पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, यहाँ पे मैं फिर समझा देती हूँ कि देखिए सिंपल आपने क्या करना है कि लोअर क्लास लिमिट को अपर क्लास लिमिट के साथ प्लस कर देना है और उन वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो आपके पास xi की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास के लिए देखिए मैंने 0 + 5 किया तो 5 आया, उसको मैंने जब डिवाइडेड बाय 2 किया तो 2.5 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, 5 + 10 किया, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 7.5 आया। अगेन 10 + 15 किया और डिवाइडेड बाय 2 किया तो 12.5 आया। इसी तरीके से आप करते जाएं तो आपके पास नेक्स्ट ये xi का कॉलम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए फार्मूले में मुझे क्या नजर आ रहा है कि इस xi के साथ लॉग है, यानी आपने इस xi के कॉलम के हर एक वैल्यू का लॉग लेना है। तो लॉग आप कैसे लोगे, बहुत इजी है। देखिए कैलकुलेटर से आप जब लॉग का एक बटन आपको नजर आएगा वो प्रेस करें और वहाँ पे प्रेस करने के बाद आपने xi की वैल्यू लिख देनी है और इक्वल कर देना है, आपके पास log xi की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, लॉग लिखें 2.5 लिखें तो आपके पास log xi की फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। log 2.5 की वैल्यू है 0.3979। ठीक है, log 7.5 आप लिखेंगे तो आपके पास आएगा 0.8751। log 12.5 इज इक्वल्स टू
1.06751. Log 17.5 is equals to 1.24309. Log 22.5 is equals to 1.3522. Log 27.5 is equals to 1.4393. Log 32.5 is equals to 1.5119 और log of 37.9 is equals to 1.5740. क्या करना है, आपने log लिखना है और वैल्यू xi की वैल्यू लिख देनी है, तो उसकी सामने वाली log xi की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, फिर आपने ये देखिए, फिर फार्मूले में हमें नजर आ रहा है इस log xi के साथ fi जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इस कॉलम के साथ आपने fi का कॉलम मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई करें 0.3979 के साथ, तो आपके पास 0.795 आ जाएगा, 58 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 मल्टीप्लाई करें 0.8751 के साथ, हमारे पास आएगा 4.3755। ओके, 7 मल्टीप्लाई करें 1.06751 के साथ, तो 7.6783 आएगा। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई करें 1.2430 के साथ, तो वह 16.1590 आ जाएगा। 21 मल्टीप्लाई करें 1.3522 के साथ, तो 28.3962 आ जाएगा। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास जो है fi log xi की वैल्यू जो है वो आती जाएंगी और आपके पास ये कॉलम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इस मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, इसके साथ ये समेशन भी नजर आ रहा है, यानी इस सम का क्या मतलब है, आपने अब इन दो कॉलम्स को जो मल्टीप्लाई किया है उनका सम कर देना है, यानी इस पूरे कॉलम का मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इस पूरे कॉलम का सम चाहिए। तो मैं इनको इन तमाम वैल्यूज को जब मैं प्लस करूंगी, मेरे पास क्या आया है, ये देखें 97.2508 आया है। ठीक है, मुझे फार्मूले में क्या चाहिए, मजीद मुझे चाहिए समेशन fi, यानी fi के कॉलम का सम जो मैं फाइंड कर चुकी हूँ वो क्या है 75। अब आपने क्या कर देना है, सिंपल इन दो वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, समेशन fi log xi की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 97.2508 पुट कर देनी है और समेशन fi जो कि 75 है वो यहाँ पे पुट कर देनी है और फिर उनका इंटी लॉग ले लेना है। बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले आपने xi फाइंड करना है। ठीक है, फिर log xi, फिर fi के कॉलम के साथ ये log xi मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उनका सम करके फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो आपके पास ये देखिए, हमने यहाँ पे समेशन fi log xi की जगह उसकी वैल्यू क्या थी, इस कॉलम का सम क्या थी 97.2508, वो यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, और समेशन fi वो क्या है 75, सो यहाँ पे 75 पुट करें। 97.2508 डिवाइडेड बाय 75 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 1.2966। ठीक है, अब 1.2966 का जब आप इंटी लॉग लोगे तो आपके पास आएगा 19.80। इंटी लॉग आप कैसे लोगे, देखें कैलकुलेटर में जो आपको शिफ्ट की बटन नजर आ रही है ना, शिफ्ट प्रेस करें। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप लॉग का बटन जो है वो दबाएं तो आपके पास वो इंटी लॉग बन जाएगा और फिर वहां पे उसके आगे जो है वो आप 1.2966 लिखें तो आपके पास क्या आएगा 19.80 आएगा। ठीक है ना, शिफ्ट दबा के फिर लॉग करके आपके पास आपने 1.2966 लिख देनी है, फिर इक्वल करना है तो आपके पास 19.80 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया फॉर ग्रुप डेटा के लिए बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर ये कैलकुलेशन जो है बहुत इजी है। ठीक है, इसके लिए पहले मिड पॉइंट्स चाहिए। मिड पॉइंट्स आप कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास मिड पॉइंट्स जो है या क्लास मार्क आप कह लें तो आपके पास वो आ जाएंगे। ठीक है, फिर इनका अपने लॉग ले लेना है। लॉग प्रेस करके ये वैल्यूज लिखें, आपके पास log xi की कॉलम की जो वैल्यूज है वो आती जाएंगी। फिर इस कॉलम को आपने fi के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उनका सम निकाल लेना है। ठीक है, उनका सम करके फिर आपने सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करनी है तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आ जाएगा।
आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हार्मोनिक मीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसकी डिफिनीशन हमने क्या पढ़ी थी कि हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर वैल्यूज। ठीक है ना, ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं आपके पास, आपने उनका रेसिप्रोकल ले लेना है और रेसिप्रोकल लेने के बाद उसका जो मीन आप फाइंड करोगे उस मीन का रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन कहलाएगा। यहाँ पे चूंकि हमारे पास क्या है, ग्रुप डेटा है, सो यहाँ पे फर्स्ट आप लोग ग्रुप डेटा का फार्मूला लिख लो। ठीक है, क्या है हार्मोनिक मीन का फार्मूला? समेशन एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई डिवाइडेड बाय एक्स आई। तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन में वेट्स और फ्रीक्वेंसीज गिवन है, आपको क्या चाहिए? एक्स आई। एक्स आई आप कैसे फाइंड करोगे? तो ये लोअर क्लास लिमिट्स और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, आपके पास एक्स आई की वैल्यूज आती जाएगी। यानी 0 + 5 करें डिवाइडेड बाई 2 करें 2.5 आएगा, 5 + 10 करें डिवाइडेड बाई 2 करें 7.5 आएगा, 10 + 15 करें और फिर डिवाइडेड बाई 2 करें तो 12.5 आएगा एंड सो इसी तरीके से करते जाए आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी और ये कॉलम जो है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन में सबसे पहला काम तो आपको ये कॉलम बनाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो, लेकिन इसके बाद जो आपने करना है ना वो इसी कॉलम का रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स आई, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2.5 आप करेंगे तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 7.5 आप करेंगे तो सेकंड वैल्यू, और इसी तरीके से आप इन सबको 1 पे डिवाइड करते हैं जहाँ आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2.5 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 0.4, और फिर 1 डिवाइडेड बाय 7.5 करेंगे तो 0.1333, 1 डिवाइडेड बाय 12.5 हम करेंगे तो 0.08, 1 डिवाइडेड बाय 17.5 इज इक्वल्स टू 0.0571, 1 डिवाइडेड बाय 22.5 इज 0.0444, 1 divided by 27.5 is 0.0364, 1 divided by 32.5 is 0.0308, 1 divided by 37.5 is equals to 0.0267। ये आपके पास क्या बन गया, 1 डिवाइडेड बाई एक्स आई का कॉलम। अब आप फार्मूले को देखें, आपको क्या चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई एक्स आई, ये क्या है एफ आई डिवाइडेड बाई एक्स आई। इसका क्या मतलब है कि एफ आई का कॉलम अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1 डिवाइडेड बाई एक्स आई के साथ। देखिए जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, एफ आई डिवाइडेड बाई एक्स आई। तो ये 1 डिवाइडेड बाई एक्स आई का कॉलम आपके पास आ गया है। कैसे आया, इसका आपने रेसिप्रोकल लिया है। ठीक है, तो अब ये जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें एफ आई जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास क्या बनेगा, एफ आई डिवाइडेड बाई एक्स आई का कॉलम बन जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट वैल्यू एफ आई की क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई करें 0.4 के साथ तो आपके पास क्या आएगा 0.8, और फिर सेकंड वैल्यू देखें, सेकंड क्या है 5 मल्टीप्लाई करें 0.1333 के साथ तो हमारे पास क्या आता है 0.6665। ठीक है, फिर 7 मल्टीप्लाई करें 0.08 के साथ तो 0.56 आता है, 13 मल्टीप्लाई करें 0.0571 के साथ 0.7423, यानी ये कॉलम जो है ये सिर्फ एफ आई और 1 डिवाइडेड बाई एक्स आई के प्रोडक्ट से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इसमें लास्ट वैल्यू 3 है एफ आई की, 3 मल्टीप्लाई करें 0.0267 के साथ तो आपके पास क्या आएगा 0.0801। अब आप फॉर्मूले में देखें ये कॉलम तो मेरे पास आ गया, लेकिन इसके साथ क्या है समेशन, यानी इस कॉलम को मैंने क्या करना है प्लस करना है, इन तमाम वैल्यूज को मैंने ऐड कर देना है। तो मेरे पास इनको प्लस करने से आता है 4.6101। ठीक है, ये क्या है, ये इस कॉलम का सम है 4.6101। अब
समीशन एफ आई क्या है, वो इस एफ आई कॉलम के सम को कहते हैं, ठीक है। यानी इन तमाम वैल्यूज को आप प्लस करें, आपके पास 75 आ गया, तो समीशन एफ आई आपके पास आ गया, समीशन एफ आई डिवाइडेड बाय एक्स आई भी आपके पास आ गया। अब आपने करना क्या है, सिंपल इस फॉर्मूले में इन दो वैल्यूज को पुट कर देना है और फिर उनको डिवाइड कर देना है। तो देखें, इनको जब हमने पुट किया हमारे पास क्या आया, समीशन एफ आई की जगह 75 और एफ आई समीशन एफ आई डिवाइडेड बाय एक्स आई की जगह 4.6101, ठीक है। ये हमने पुट किया, 75 डिवाइडेड बाय 4.6101 जब हमने किया तो हमें क्या मिला, हार्मोनिक मीन 16.268। ये क्या है, ये हमारा हार्मोनिक मीन। ये सेम वही डेटा है जिसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया था। उस डेटा के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हार्मोनिक मीन भी फाइंड किया। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपके पास क्या है, समीशन एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई डिवाइडेड बाय एक्स आई, ठीक है ना। और हार्मोनिक मीन होता क्या है, ये रेसिप्रोकल अरिथमेटिक मीन का, लेकिन जब आप उसके लिए पहले ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल लोगे उसके बाद, ठीक है। यानी ऑब्जर्वेशन जो आपके पास गिवन होंगी उनका आपने रेसिप्रोकल लेके फिर उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और फिर उस अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल जो है वो हार्मोनिक मीन कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्टार्ट करेंगे।